welcome to the special podcast brought to you by MJ Marketing Consultancy. Today, we all are gathered here for the beautiful podcast which is giving you insight about our topic. So, we have our esteemed guest, Mr. Bhatt sir, who are the founder and the CEO of MJ Marketing Consultancy. So, basically, Hello, good afternoon, everybody. thank you so much, sir, for being here and to give us all of the insights. So, basically, my name is Saloni Singh, and today we all are gathered here for this beautiful insights. And with me, we have Srinivas, who is going to ask questions from sir for different topics. So, before turning to and before diving into the conversation, let me introduce you with our company. So basically, our company is a remote-based company started in 2020, and our company provides different domains. Basically, our company provides services on IT and non-IT sectors. So for the IT sectors, we provide services like web development, application development, and for non-IT sectors, we provide servicing. Basically, what we do recruitment, we do hiring, we do staffing, we do designing, and so many things. Also, we provide knowledge to different domains through courses and internship to all of the students and all of the eager learners like us. So basically, we provide internship and courses to all of the people on different domains. So that's it about our company. So basically, Mihi sir started this company on 2020, and this conversation and this podcast is for all of us why and how it happens when a person who have a thought to start a company, what are his experience, what are the hurdles he feels, and what is the journey he comes through and make this company successful, and what are his future plans. It is very beneficial for all of us young minds to know and to just get a motivation to start a new company. So before starting anything or saying taking too much of your time, I would like to request Srinivas to get into the conversation and to ask all of the valuable questions. Yes, thank you, Saloni. So जो मैंने रियल प्रॉब्लम्स किया था सर, मैं पहले वो पूछूंगा मैं आपसे, आपको क्या डिफरेंट लगे कि कंपनी स्टार्ट करना या जस्ट टू फाइंड a mute button on a Zoom call? What do you think is more difficult? ओके, तो कंपनी स्टार्ट करना दैट नॉट डिफिकल्ट प्रोसेस. ओके, काफ़ी लोगों को कंपनी फाउंड करने में, कंपनी ये स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होगी. ओके, बट मेरे लिए इट्स दिस नॉर्मल टास्क. लाइक मेरे कोई बैकग्राउंड नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बीएससी इन केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा था. ओके, तो मेरा कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं है. मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी मार्केटिंग में या फिर एज अ फाउंडर या फिर एज अ कंपनी नहीं बनाई है. तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई इनके कोई फैमिली मेम्बर्स में या फिर इसमें कुछ से इसको हेल्प हो रही होगी, तो नहीं. मैंने जो भी किया है, मेरा खुद का पैशन था. ये मेरी स्टडीज में भी मैंने कोई एमबीए या फिर बीबीए नहीं करा. एंड देन जो भी मेरी कंपनीज है वो धीरे धीरे जो भी है वो मैंने स्टार्टअप करना. पहले तो जस्ट मैं एज अ फ्रीलांसर्स काम कर रहा था. पहले ये सब हमारा कुछ नहीं था. हम लोग जस्ट एज अ वीडियो एडिटर फ्रीलांसर काम कर रहे थे. ओके, सबसे पहले मेरी सर्विस वीडियो एडिटिंग है. ओके, देन धीरे धीरे जो भी है वो मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड फिर रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग. मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल था. मेरे काफ़ी कनेक्शन में ऐसे है जो एचआर में नॉलेज रखते हैं. उनके पास एचआर रिलेटेड चीज़ें मैंने पहले खुद लर्न करी एंड देन आफ्टर उसको इम्प्लीमेंट करा. तो ये सब कुछ मेरी जर्नी रही थी. या And sir, like before starting a future marketing consultancy company, आप कुछ जॉब में like 9 to 5 जॉब में आप या सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नॉक्यूएस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में मैंने काम करा था एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव. ओके, वहाँ पर मैंने करीब 1 से 1.5 साल काम करा होगा. ओके, एंड उसके बाद इनफैक्ट उसके जो फाउंडर थे मिस्टर अदित अग्रवाल, उसके साथ अभी मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन है. ओके, मेरा एक वन टाइप ऑफ फ्रेंड्स ही पकड़ लो. उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं अभी. ओके, देन आफ्टर मैंने जियो फाइबर में एज ए टीम लीडर 2 साल काम करा था. ओके, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें. टीम लीडर्स तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि टीम लीडर्स नेम है तो काफ़ी अच्छा काम होगा,
बट ऐसा कुछ नहीं था। टीम लीडर जस्ट वहाँ पर उन लोगों ने पोजीशन हमें दे दी थी, हमने वहाँ पर डोर टू डोर मार्केटिंग करी थी हम लोगों ने। मैंने लिटरली बोलूँ तो जो भी पैम्पलेट होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करे हैं डोर टू डोर जाके। तो काफी कुछ मार्केटिंग वहाँ पर उन लोगों ने, मतलब टीम लीडर्स तो जस्ट कहने के लिए, नेम के लिए उसने बोला, बता दिया था मैं ऑफर लेटर में टीम लीडर लिखा है, तो एक टीम लीडर लिख बता दिया था। बाकी काम उसका सेल्स पर्सन का पकड़ लो या फिर वैसा ही कुछ कुछ काम आप लोग पकड़ सकते हो। उसमें मैंने कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं था, जियो में मैंने काफी कम टाइम काम करा था। एंड देन फिर मैंने मस्ट हॉरेबल एक्सपीरियंस मेरा मीशो के साथ रहा था। मीशो में मैंने एज अ मैनेजर काम करा था, बट वहाँ पर मैं सीखा भी काफी कुछ। मीशो के साथ मुझे सीखने को भी काफी कुछ मिला, बट वहाँ पर एक्सपीरियंस कुछ कुछ मेरा काफी बुरा रहा था मीशो के साथ बेसिकली। या एंड सर एक्चुअली आपका जो एक्सपीरियंस मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। आप मल्टीपल कंपनी के साथ आपने काम किया, सो योर लाइफ इज गोइंग रियली फाइन, बट आपको क्यों लगा कि आपको ये सारा छोड़ के आपको नया कंपनी चालू करने के लिए, मतलब कौन सा मोमेंट में आपको लगा? बिकॉज ऑफ जो भी मैंने न्यू स्टार्टअप ये फाउंड करा, उसके पहले मैंने जॉब से, देखो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जॉब से। मुझे स्टडी इनकम आ रही थी। लाइक यहाँ पर कभी कोई मंथ में मेरे पास काफी अच्छा पैसे मिलते हैं, कोई मंथ में ऐसा होता है कि भाई नहीं मिलते उतने अच्छे पैसे। एंड जब मैंने स्टार्ट करा था इन स्टार्टिंग ईयर, मुझे काफी बिल्कुल ना के बराबर पेमेंट आ रही थी यहाँ से। ओके। तो मैंने पहले तो ऐसा सोचा था कि भाई जॉब के साथ मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूं, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें आप कोई भी एक जगह पर भी फोकस नहीं कर पाते हो, है ना। या फिर जॉब कर लो या फिर आप बिजनेस कर लो, वो चीज होती है ना। और जॉब नहीं करने पीछे का रीजन ये था कि भाई एक तो मुझे कॉर्पोरेट लाइफ राज नहीं आई थी, काफी कुछ प्रेशर होता है, काफी कुछ चीजें होती है। ओके। एंड दूसरा मेरा एक ये मानना था कि भाई मैं किसी और के लिए मेहनत करूंगा, एंड उसको मैं अगर पैसे कमा के दे रहा हूँ तब जाके मुझे वो सैलरी देगा ना। ठीक है। मान लो मेरी सैलरी वहां पर 30,000 है, तो कहीं ना कहीं से मुझे उसको 90,000 रेवेन्यू जनरेट करके देना पड़ेगा, तभी मुझे 30,000 दे पाएगा। नहीं तो फिर वो मुझे 30,000 नहीं दे पाएगा। ओके। तो मैं किसी और को 90,000 का प्रॉफिट कराऊं, उसके लिए काम करूं, उससे अच्छा मैं खुद के लिए काम कर लूं ना। पहले ना स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मुझे थोड़ी अपनी एनर्जीज लगानी पड़ेगी। ओके। मे भी उतना मैं 90,000 का रेवेन्यू फर्स्ट मंथ में जनरेट ना कर पाऊँ, पर जो कर पाऊँ वो मेरे लिए रहेगा ना। ठीक है। वो मुझे हेल्प करेगी। या ओके। आपका वॉइस आई गेस कट हो रहा है। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा हम्म। है। डू यू वांट टू आस्क एंड यू वांट टू स्किप टू मी? Yes, sir. So if you have any questions, would you like to ask? Then I will continue. Yeah. So, sir, as you said earlier that basically your friends are there जो कि काफी इन सब चीजों पे थे, स्टार्टअप पे थे, and also me as a youngster and finding and thinking about different innovations, ideas, and starting and seeking job. I come to know that Gujarat, especially Jamnagar in Gujarat, is a area जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, like बहुत सारे. So, is it about for the area and for your friends? Because you said कि आपके फैमिली में कोई कुछ भी नहीं करता था, तो so basically who support you more, your family member or either your friends? Because अगर फैमिली में कोई भी बिजनेस में नहीं है तो फिर एक पुश नहीं मिलता है. पीपल से कि एक स्टेबल जॉब है 9 to 5, आई वांट टू डाइव इनटू बिजनेस और इतना रिस्क होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे. तो फिर आपको पुश किसने दिया थ्रू आउट योर जर्नी? उसका देखो, इसमें ऐसा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी गुड क्वेश्चन, बट उसका ऐसा है कि वो आपको अपने आप को खुद को ही करना होता है। ओके। अगर फैमिली मेंबर्स में से किसी का सपोर्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोला कि सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाता ना। ओके। सपोर्ट डेफिनेटली है, बट मेरे फैमिली मेंबर में से किसी ने किया नहीं है, सो उनको मैं कुछ एक्सपर्टीज उनकी नहीं ले सकता हूँ। ओके। तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम आ सकती थी, बट उसमें मैंने अपने आप को खुद को ही मोटिवेट करा, एंड जो भी है चीजें मैंने खुद से, कभी भी ऐसा लगता था। और गुजराती का जैसे भी आपने बोला वैसे बिजनेस हमारे थोड़ा वो ब्लड में ही होता है, कहीं ना कहीं वो हम लोग कर लेते हैं। ओके। तो वो
चीजें थोड़ी है हमारे गुजराती में ब्लड में, थोड़ा वो चीजें होती है, तो वो कर लिया मैंने कुछ प्रॉब्लम उसमें। स्टार्टिंग ईयर्स में मुझे प्रॉब्लम आई थी, काफी बार ऐसा भी लगा मुझे कि यार ये सब बंद करके एक स्टेबल जॉब कर लूं मैं, एक स्टेबल इनकम तो मिलेगी, ओके ट्रू। एटलीस्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल ही ना के बराबर इनकम थी, कुछ नहीं था, ओके। तो हाँ। तब मुझे खुद से भी ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या मैंने ओपन कर लिया है, इसमें इतना एनर्जी, क्योंकि आप कहीं पर अगर बहुत एनर्जी लगा रहे हो जॉब पे तो आप 9 to 5 काम कर रहे हो, यहाँ पर ये कंपनी के लिए मैंने रात को 3 3 4 4 बजे तक भी काम करा है, ओके। तो आप जब इतना एफर्ट्स लगा रहे हो उसके बाद आपको रिजल्ट जीरो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी डिमोटिवेट हो गई होगी, ट्रू है ना। ट्रू ट्रू। तो कभी मुझे ऐसे थॉट्स भी आए हैं, बट सडनली फिर ये थॉट्स आते हैं कि भाई जॉब करूंगा तो फिर से वही लाइफ है, फिर से कॉर्पोरेट लाइफ है, और या वहां ट्रू। पर किसी और के लिए काम करना पड़ेगा, है ना। बॉस के इशारों के ऊपर नाचना पड़ेगा। ट्रू। ठीक है, तो उससे अच्छा अपना खुद का तो करूं, जो करूं या वो छोटा करूं तो छोटा, तो अपना खुद का तो हो। या या And sir, one more question. As you said that you know आपने खुद ही को पुश किया, आपने खुद ही कहा कि okay, I have to do it. I don't want to go to 9 to 5 again. So basically, it's been already 5 years, right? And we are seeing the company. We are seeing that company is growing, members are adding. So tell us, what is your future goal? What are you thinking कि okay, this is what I want to do. अब इतना आगे ले जाना है, मैं इतना आगे आ गया हूँ. Like the one core value which you are lying कि I have to do this and this is my future plan. वेरी गुड, ओके। सो बेसिकली मेरा फ्यूचर प्लान ऐसा था कि जो मैं आज कर रहा हूँ ना, मैंने कोई ऐसा गोल पर्टिकुलर डिसाइड नहीं करा था कि मुझे 5 साल बाद ये करना है या फिर 10 साल बाद मेरी कंपनी को यहाँ देखना है। बस मैंने गोल इतना डिसाइड करा था कि जो मैं आज कर रहा हूँ, जो अभी मेरा है, उसका कल मेरा उससे बेटर होना चाहिए कुछ। जो मिस्टेक हम लोग आज कर रहे हैं वो 30 डेज बाद भी वो सेम मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर हम लोग ग्रो ही नहीं हो रहे ना, ठीक है वहां पर। तो जो मिस्टेक मैं आज कर रहा हूँ उसको मैं रिपीट ना करूँ दूसरी बार, वो मेरा एक चार गोल रहा था। बाकी मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे भी पता था, और जो भी एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, उनको एक मेरी तरफ से एडवाइस है कि स्टार्टिंग के 5 साल तो आप भूल जाओ, धंधा होगा कुछ भी, है ना। स्टार्टिंग के 5 साल आपको वहां पर काम करना है, सिर्फ अपना 100% एफर्ट लगाना है। अगर आप लोगों ने अच्छा अपना 100% एफर्ट लगाया, उसके बाद आपको 5 साल बाद धीरे धीरे धंधा होना स्टार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। 5 साल बाद भी ऐसा नहीं होगा कि रॉकेट के मतलब कि मान लो आप जीरो पे आपकी कंपनी है और सडनली उसका 1 मिलियन टर्नओवर हो गया, 10 मिलियन टर्नओवर, ये कभी नहीं होता। कोई भी स्टार्टअप ऐसे नहीं चलते, स्टार्टअप धीरे धीरे ही जरूर होते हैं, ओके। तो बट गोल को स्टार्टिंग में काफी लोग आपको बोलेंगे कि भाई गोल होना चाहिए, गोल होगा Vision. तो काफी अच्छा होगा, है ना, विजन Yeah. मिलता है। बट गोल मेरे हिसाब से होगा वो अच्छा इसलिए नहीं होगा कि मान लो आपने वो गोल एक डिसाइड करा, उस गोल पे आप नहीं अचीव कर पाए किसी रीजन से, तो वहां पर आप डिमोटिवेट काफी होंगे, है ना। Hmm. और स्टार्टअप आप फाउंड कर रहे हो तो फिर आपको यही सोच के चलना है कि भाई अब तो मुझे यही करना है, ठीक है। 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, करूंगा तो यही, ठीक है। तब जाके आप अच्छा प्रॉपर ग्रो हो पाते हो, एंड अच्छा प्रॉपर आपका स्टार्टअप रन हो पाएगा। क्योंकि स्टार्टअप इसीलिए फेल हो रहा है ना, स्टार्टअप, मोस्ट ऑफ स्टार्टअप किस लिए फेल होता है कि First, we भाई don't नहीं have. कर पाते, है ना। Yes, sir. उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाते, जिस अकॉर्डिंग उसने सोचा है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग वो नहीं कर पाते, एंड फिर डिमोटिवेट होकर वो बंद कर देते कंपनी, ठीक है। तो वैसे नहीं करना। True. Again, sir, you very right said that we have that zeal, कुछ काम करने की and patience होना चाहिए for long. I also came to know, मैं जब Infosys की story पढ़ रही थी तो मैंने उसमें सुना था कि उन्होंने सुधा मूर्ति से कहा था कि now you earn and I'll be here. अब मैं बस लग जाऊंगा, काम करूंगा 5 6 साल 10 साल जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं होती है. So yeah, patience is very important. But still, I want to know, and everybody I feel कि what is the legacy and what is the one core value जिस पे कंपनी रन करती है and successful होती है. Like ऐसे as you said that so many startup are starting and वो कहाँ miss हो जाते हैं, nobody even cares and know about it. So what is the one core value जिससे आप भी स्टिक रहो and लोग आपको जाने, आपकी कंपनी को जाने. देखो, कंपनी को चलाने के लिए, स्टार्टअप को चलाने के लिए आइडिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। आइडिया तो आपका कुछ भी होगा चलेगा,
ओके, बट आपका जो फाउंडर है, ओके, या फिर वो स्टार्टअप कौन रन कर रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। अगर एज अ फाउंडर ही आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आप नहीं डील कर पाते हो क्लाइंट के साथ, जैसे मेरा भी था, मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो स्टार्टिंग में मुझे काफी फेयर रहता था कि भाई क्लाइंट के साथ कैसे डील होगी, कैसे मीटिंग होगी, कैसे क्या क्या चीजें हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट वो धीरे धीरे, वो ऐसी चीज है ना कि भाई मान लो एक आपका समुंदर है या फिर कोई आपका एक स्विमिंग पूल है, ओके, वहां पर आप देख के तो आपको में भी ऐसा लगेगा ना कि भाई इस पे मैं कैसे डाइव करूंगा, मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है ना। बट आप एक बार उसमें डाइव कर जाते हो, फिर तो आप जो भी है वो जैसे तैसे करके अपने आप को सर्वाइव कर ही जाते हो, है ना। True. और अगर आप डूब भी जाओगे तो आसपास की ये दुनिया ऐसी तो है कि आपको हाथ देगी, ठीक है। Yeah. मैं मानता हूँ कि ये दुनिया ऐसी है कि भाई आपको अगर आप बहुत ग्रो हो रहे हो तो आपकी टांग खींच के नीचे भी लाएंगे, है ना। Yeah. बट ये That दुनिया ऐसी तो है कि जस्ट आप अगर डूब रहे हो तो आपको हाथ देगी, इतने true. भी खराब दुनिया नहीं है ये, Yeah, ठीक है। true. True. तो इन शॉर्ट आपको अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप बाहर से ही सोच रहे हो कि भाई स्टार्टअप करने में मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, नहीं होगा कुछ, उतना आइडिया आपको नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, है ना। Yeah. और एज अ फाउंडर आपको खुद पहले तो पॉजिटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, ओके। आपके अंदर वो एक कहता है ना कि भाई आपका वो एक नेचर होना चाहिए कमांडिंग, ठीक है। Yeah. उसके लिए आपको अगर जॉब करनी पड़े तो आप स्टार्टिंग में कुछ साल जॉब कर सके, इसीलिए लोग एडवाइस भी करते हैं कि भाई स्टार्टअप करो, बट स्टार्टअप से पहले कोई एक जॉब कर लो, है ना, ताकि आपको एक प्रॉपर कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस आ जाए। जैसे कि मैंने भी टीम लीडर काम करा था, सेल्स में काम करा था। एचआर में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे काफी सारा फ्रेंड है जो एचआर में काम कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट मुझे पता है वो चीजों का, ओके। जो भी चीजें आप लोगों को स्टार्ट करनी है उसका प्रॉपर पहले नॉलेज लो, देन आफ्टर आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें कोई आपको दो राय नहीं है। Okay, thank you so much, sir. So, moving forward with Srinivas, you can start. Sir, actually, I do agree with what you have said, कि especially people from Gujarat, जिस एरिया में है, उनका मेरे को लगता है कि उस मतलब ब्लड में जो एंटरप्रेन्योर का मेंटालिटी वो है। सो मैंने 2 साल उधर ही काम किया था इन गुजरात, एंड आई इंटरेक्टेड विद पर्सनली। मेरे को भी इंस्पिरेशन आया था कि मैं भी एक फूड बिजनेस चालू कर रहा हूँ उधर। इट डिडंट वर्क आउट सम। Yeah, so I do agree what you said. So moving on to the next question, sir. Actually, I wanted to ask. आपको So मैं ये एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको एक ऐसा आइडिया आया था कि भाई आपको फूड का कुछ बिजनेस चालू करना है, सो फिर क्यों नहीं करा। सर एक्चुअली उसमें गुजरात में ऐसा होता है कि दाल में ज्यादा स्वीट डालते हैं हम लोग। तो वो हमारा साउथ इंडियंस के लिए तो कुछ प्रॉब्लम लगा था। तो इसलिए हमने हम्म। फ्रेंड सर्कल से सोचा है कि यार हमारा साउथ इंडियन के लिए कुछ रखेंगे फूड का। बट हमारे ओके, टीम बाद में कुछ प्रॉब्लम वजह से टूट गया। फिर हम उसमें कंटिन्यू नहीं किया था। ओके, 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 ओके। बट इसका आप कुछ सॉल्यूशन भी निकाल सकते थे ना, Yeah, true. लाइक यस शेफ सर, रख लो, है ना। यस कुछ तो सर, हो बट सकता था, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा तो है नहीं ना बिजनेस में। मैंने 5 साल से धंधा कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना मिला हो मुझे। Yeah, true. सॉल्यूशन होते ही होते हैं, थोड़ा सोचना होता है ना, थोड़ा सोचना होता है। एंड थोड़ा वो आपको जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करनी होती है, बाकी सॉल्यूशन तो आपको मिलती ही है। हम्म। यस सर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप या आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस था, वुड यू लाइक टू शेयर एनी फनी स्टोरी व्हिच यू फेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ? यार फनी स्टोरी तो रोज होती है। लाइक ऐसा आप काम करते हो फाउंडर, तो आपको रोज कहीं पर, मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि भाई हमें टीवी पे या फिर कहीं पर भी फनी स्टोरी या फिर फनी सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ हम लोगों का हो ही जाता है ना। जैसे कि अभी रिसेंट हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट ले तो लाइक एक हम लोगों ने मीटिंग करी थी। एक लड़की काफी अच्छी, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सब कुछ काफी अच्छा था।
हम लोगों ने उसको बोला, आई गेस सलोनी भी थी वहां पर, एंड हम लोगों ने उसको बोला था कि भाई स्क्रीन प्रेजेंट कर लो। उस लड़के को पता है स्क्रीन प्रेजेंट करना नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, सडनली लेफ्ट हो जाते हैं विदाउट आंसर। I तो think second फनी round, स्टोरी। it's very funny. हाँ, कुछ कुछ के ऐसे अजीब ही आंसर दे देते हैं इंटरव्यू में। हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सामने से कुछ ऐसा सोचा ही ना हो वैसा आंसर आपको मिल जाता है। कभी कभी तो कंट्रोल करना मतलब कि ऐसा हम लोगों को हो जाता है कि भाई, क्योंकि उसके सामने तो नहीं हंस सकते ना। ऑब्वियस बात है, आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उसके सामने आप नहीं हंस सकते। या एंड जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आप यू आर एंटरप्रेन्योर एंड आपका लाइक इफ देयर इज अ चांस कि आपको डिनर करना है दूसरे एंटरप्रेन्योर से, वेदर इज लिविंग राइट नाउ और इज डेड पास्ट, तो आपको उसको पहले क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे उससे? ओके, सो अगर मुझे कोई एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिनर करने का चांस मिले, सो आई गेस मैं अर्शनील ग्रोवर को चूज करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पसंद वो इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, है ना। जो भी बात है वो उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, टाइम पास नहीं रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि दूसरे एंटरप्रेन्योर्स टाइम पास करते हैं, ठीक है, बट उसका थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है। एंड क्वेश्चन में उनको मेरा क्वेश्चन एक ही रहेगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट वो अपने आप का कैसे करते हैं। क्योंकि मुझे एज अ पर्सनल मैं अपना बताऊँ तो मुझे टाइम रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट में काफी प्रॉब्लम्स आती है। ओके, लाइक मैं जो भी टास्क सोचता हूँ कि आज करना है, वो टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं हो पाते हैं वो टास्क। वो कल होते हैं या फिर डे आउट ऑफ चला जाता है ना। जो टास्क आज के है वो कल हो जाते हैं, कल पे शिफ्ट हो जाते हैं। कल के जो टास्क है वो एक दिन बाद के शिफ्ट हो जाता है ना। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे पर्सनली बहुत आती है। एंड लाइव अगर हम लोग देखें तो ये पॉडकास्ट का भी काफी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे। ओके, मे बी 1 और 2 वीक से मेरी पीए को पता है ना। तो आज जाके हम लोगों को जो भी ये है वो पॉसिबल हो पाया है। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क जब से मैंने ये स्टार्ट करा है तब से रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं कर पाता हूँ जो भी मेरे काम। आज मैं सोचता हूँ ना मॉर्निंग में कि भाई आज मेरा ये टू डू लिस्ट है, ये मुझे काम करना है, तो एंड में वो काम होते ही नहीं है। वो उससे कम काम होते हैं, 20% या फिर 10% कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये एक मेरा काफी कंसर्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा उनके पास से। and इसका आंसर मैं लेने का कोशिश करूंगा। लाइक मेरे तरफ से फाइनल लास्ट क्वेश्चन जो मेरे को हेल्पफुल होगा। सो हम्म। सर, मेरा गोल एक ही, मेरे को एमबीए करना है। उसके बाद 1 2 साल जॉब करना है, फिर उसके बाद जैसा आपने स्टार्ट किया था कंपनी, मेरे को एक आइडिया ऊपर एक स्टार्टअप बनाना है। तो आप क्या सजेशन आप दे सकते हो टू यंग एंटरप्रेन्योर्स हु आर आउट देयर? देखो यार, अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई एमबीए करने के बाद आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा एंड उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, सो उससे अच्छा आप बिफोर ही स्टार्ट कर दोगे। बुकिश नॉलेज लेने से अच्छा आप पहले स्टार्ट कर दोगे। तो 2 साल 3 साल आप जो एमबीए में अपना वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आपको एक डिग्री मिलेगी, बट वहां पर जो आप लगा रहे हो उससे अच्छा आप 2 साल अपने बिजनेस में दोगे तो आप कहीं ना कहीं ग्रो होंगे ना। ठीक है, सपोज आपने अगर 2 3 साल अगर एमबीए वहां पर करा एंड फिर आप कोई बिजनेस का आइडिया सोचा, उसके बारे में सब कुछ काम वाम करा, तो आपके इयर्स काफी बढ़ जाएंगे वहां पर, है ना। बाकी अगर आपको एज अ पहले मार्केटिंग नॉलेज लेनी, वो कुछ देखो एमबीए वाले मेरे काफी बच्चे देखे हैं, वो उतना मार्केटिंग कोई नॉलेज या फिर उतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाते, कोई भी इंस्टीट्यूट होगी। ठीक है, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज ही होगा, एंड बुकिश नॉलेज रियल लाइफ में कहीं पर भी काम में नहीं आता है ना। मेरा अगर देखा जाओ तो मेरा कोई मार्केटिंग नॉलेज थोड़ी है, मैंने थोड़ी एमबीए करा है, मैंने तो बीबीए भी नहीं करा। मेरा तो केमिस्ट्री में नॉलेज है, बीएससी में। तो वो तो कहाँ इधर यूज आया, जो मैं पढ़ा वो तो मैंने यूज ही नहीं किया कहीं पर भी बिजनेस में, है ना। तो बुकिश नॉलेज से अच्छा आपको पता हो रियल मार्केटिंग क्या होती है, रियल एचआर में भी मुझे कोई, मैंने थोड़ी कोई कोर्स करा True. है ना। बट आपको पता होना चाहिए, चीजें लर्न होनी चाहिए, वो आपको यूजफुल होगी।
राइट। ठीक है, ये एक मेरी एडवर्टाइज जो एडवाइस है वो रहेगी। बाकी आप अपनी तरफ से जो भी देख सकते हो, जो भी आपकी फैमिली अलाउ करे। डिग्री भी इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। अगर आपको जॉब करनी है तो डिग्री वेरी मच इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिग्री के बिना तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, इंटरव्यू पे भी नहीं बैठने देंगे, है ना। बट अगर आपको बिजनेस करना हो, एज आपको स्टार्टअप करना हो, तो उसके लिए कोई डिग्री रिक्वायर नहीं होती है। तो उसमें आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई आपको एमबीए करके आओ या फिर बीबीए करके आओ या फिर ये करके आओ। कुछ भी करके 12th पास वाले भी मैंने काफी मेरे फ्रेंड में देखे हैं जो काफी अच्छी कंपनियां चला रहे हैं, जिसने 12th पास करा है, 12th ही पढ़े है। 10 पढ़े हुए भी मैंने तो देखे हैं, सिर्फ 10 में भी फेल हो गए वैसे भी देखे हैं, बट बिजनेस में वो पास हो गए, काफी सक्सेसफुल है ना। थैंक यू सर। I ओके। yeah, Saloni, can you state more? Okay, thank you so much, Srinivas. So, sir, as you said that you saw and you know the peoples who fail in 10th and 12th, but still pass in business, right? Same, my grandfather always used to say, we study two things. We study for our own self, for the bookish knowledge, and then the another study is the life study, which the life teaches you and the life experience gives you. So, sir, just want to know, have you ever feel कि यार MBA कर लेना चाहिए था या BBA कर लेना चाहिए था, या मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट सीखना चाहिए था क्योंकि मैं यहाँ लैक कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा आपको लगा बिकॉज यू सेड यू डन केमिस्ट्री? सो इजंट इट वेरी डिफरेंट फील्ड? क्योंकि हम लोग बहुत सोचते हैं कि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है, एवरी टाइम पीपल जस्ट सेट बैक थिंकिंग कि नो वी आर नॉट स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड और हमें ऐसी फील्ड में जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वी लिसनिंग दीज थिंग्स कि यू ओनली हैव टू गो एंड स्टेप टूवर्ड्स दोज थिंग्स विच यू आर अवेयर ऑफ, और एटलीस्ट आपको उसकी थोड़ी नॉलेज हो। हम्म। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि कुछ चीजें वहां पर मुझे ऐसे ही सिखाने जाएगी जो मुझे बिजनेस में हेल्प हो। ठीक है। बट ऑन मेन वाइल मैंने, देखो, पहले एक्सपीरियंस ले गया था। ठीक है, लाइक मैंने एज अ मार्केटिंग भी मैंने काम करा था। ओके। तो मुझे मार्केटिंग में एक्सपीरियंस था, जो मैंने पहले कहा वैसे डोर टू डोर मार्केटिंग भी करी है, तो उसमें मुझे कोई एक्सपीरियंस था, वैसा कुछ सीन मेरा नहीं था। ओके। तो उसमें मुझे एक्सपीरियंस था, फिर टीम हैंडलिंग में मुझे एक्सपीरियंस था, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं जो एमबीए करूंगा और वहां पर मैं कुछ नया सीख पाऊंगा या फिर मेरी चीजें उसमें एड ऑन हो जाएगी। कुछ कुछ चीजें आप बता रहे हो जैसे मैनेजमेंट रिलेटेड एंड जो भी चीजें है वो, बट वो मुझे वहां पर बुकिश नॉलेज लेने से अच्छा यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं काम करूंगा। भले ही थोड़ी मिस्टेक होगी स्टार्टिंग में, मैं मान लो कि 100% नहीं दे पाऊंगा अपना। ठीक है। बट वो मैं सीख लूंगा ना, और मेरे पास वो नेटवर्क था, मेरे पास वो फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस थे। ठीक है। लाइक उसके पास से मैं कुछ कुछ चीजें सीखता था। लाइक पहले तो मेरा कुछ कनेक्शन नहीं था, बट जैसे ही मैं बिजनेस में आप आते हो ना, जैसे ही आप अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपके कनेक्शन बढ़ने लगते हैं। ओके। एंड उसमें से ही आप जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे लर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो उसमें आपको कोई स्टार्टिंग में, मुझे आप बता रहे हो वैसे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई मैं एमबीए कर लिया होता या फिर मैंने कोई अच्छा मतलब कि डिग्री वगैरह कर ली होती मार्केटिंग रिलेटेड या फिर एचआर रिलेटेड, तो मैं कुछ उसमें मुझे हेल्प होती इसमें। बट धीरे धीरे फिर कर जो करे उसके साथ बात करे ना उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अच्छा हुआ भाई नहीं किया। ट्रू। मुझे सुनने में आता है, लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट टुडे कि आप केवल एमबीए डिग्री से, अगर आप सोच रहे हैं कि आफ्टर डन विद एमबीए, इवन यू आर डनिंग इट विद एनी गुड इंस्टीट्यूट आल्सो, you should have the experience, otherwise it's just waste, right? So basically, I want to ask, this is really very a question which I feel very interesting. So basically, if you are here, you already have 5 years of experience in this company. So tell me, before the day when you thought of starting a company and the day you starting it, the execution take place, what one thing you feel, what one advice you feel that अगर उस टाइम के मिहिर भट्ट को पहले पता होती तो आज बहुत सक्सेसफुल होता, या फिर कंपनी थोड़ा और आगे रन करी होती? एक ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है यार मुझे उस टाइम पता होनी चाहिए थी, ये चीज पता होनी चाहिए थी। एक एडवर्टाइज तो मैं अभी ये कह सकता हूँ कि तब मैं ना उतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। तब मैं मतलब कि 2020 में मेरा लिंक्डइन क्या था ये भी मुझे नहीं पता था। ओके। या फिर फाइबर हो गया या फिर फ्रीलांसर्स वेबसाइट्स वगैरह हो गई। ओके। जहाँ से हम लोग मेजोरिटी क्लाइंट्स वगैरह ढूंढते हैं एंड जहाँ से ही हमारे काम, क्योंकि मेरे तो ऑनलाइन बिजनेस है। ओके। मेरा कोई यहाँ पर डोर टू डोर मार्केटिंग या फिर ऑफलाइन बिजनेस तो है नहीं। ओके। या तो ऑनलाइन में उतना अवेयर नहीं था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर।
वो मैं अगर पहले अवेयर हो जाता, लाइक मैं जब अपना जॉब कर रहा था तभी मैं अवेयर हो जाता, तो तब मुझे एक काफी अच्छे कनेक्शन बिल्ड हो गए होते। फिर वहां से ही मुझे स्टार्टिंग में जो मेरा जो स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगा है ना वहां पर 2-3 साल मेरी कंपनी में, ठीक है, वो मेरे नहीं लगता। Yeah, true. So this is my last question. I just want to ask for all of us, for all of the listener who is listening us, and after completing this also, whatsoever, whosoever is listening, tell us the one piece of advice if we all are going to start a company, which you want to give us as a youngster, as a young generation, ki okay, just swear by this and everything will be good. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास। ओके, आपके पास ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि भाई 6 मंथ या फिर 8 मंथ ही आप बिजनेस चला पाओ, उसके बाद आपका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं हो उतना स्टेबल कि भाई 8 मंथ के बाद में आपको जॉब ही करना पड़े, ऐसा आपका अभी थॉट्स है, तो 8 मंथ में कुछ बिजनेस में नहीं कर पाओगे, उससे अच्छा आप फिर जॉब कर लो। ठीक है, बट आप पहले से ही क्लियर हो कि भाई मुझे कोई फाइनेंशियल ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में मैं 1-2 साल लगाऊंगा तो भी मुझे कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी, तो फिर आप जो भी है बिजनेस में अपना जो भी है वो आगे जा सकते हो, क्योंकि बिजनेस इज वेरी टफ। वो Yeah. उतना जल्दी जल्दी ग्रो नहीं होगा, आज आपने स्टार्ट करा कल आपको क्लाइंट आने लगे, वैसे कोई भी नहीं होता है। ठीक है, ये उतना मतलब कि इजी टास्क नहीं है, जैसे खाना पकाने जैसे इजी टास्क नहीं है ये। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ओके, एक दिन में बिजनेस जो है वो आपका नहीं चलने लगेगा। तो अगर आपके पास टाइम है, ओके, मनी इज डोंट रिक्वायर लाइक फाइनेंशियल, अगर आपके पास मनी नहीं है वो तो आप कहीं ना कहीं से फंड उठा सकते हो। ओके, कहीं ना कहीं से आप कुछ भी चीजें उसके लिए जुगाड़ कर लेते हो, इंडियंस हम लोग है ही जुगाड़ू। ओके, Very तो true. वो तो हो जाएगा। तो मनी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आपके पास टाइम होना चाहिए, लाइक आपकी कंडीशन ही ऐसी है किसी की कि भाई 2 मंथ बाद मुझे घर में पैसे देने ही देने हैं, ठीक है, मुझे एक स्टेबल इनकम आनी चाहिए, तो बिजनेस आपके लिए नहीं बना, क्योंकि इसमें कोई स्टेबल इनकम होती ही नहीं है। लाइक आज भी 5 साल बाद भी मेरी कोई स्टेबल इनकम नहीं होती है। ठीक है, इसमें कभी आपको कोई मंथ में काफी अच्छा रेवेन्यू मिलता है, कोई मंथ में काफी कम रेवेन्यू मिलता है, और स्टार्टिंग में तो काफी मंथ में आपको कुछ रेवेन्यू नहीं मिलता है, वैसा भी हो सकता है। Yeah, true. ठीक है, तो ये सब आप इससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली बिजनेस इज फॉर यू। Thank you so much. So basically that was my last question, but still आपके इस पूरे explanation के बाद just tell us one more thing, that if you said that बहुत सारे setbacks आते हैं and हमें अगर हम इतने confident हैं कि हम कर पाएंगे, तब हमें करना चाहिए। हम आजकल सोशल मीडिया देखते हैं and we feel कि people started and then after some time they get successful, तो हम सब इंस्पायर हो जाते हैं कि ठीक है यार, हम भी कुछ ऐसा कुछ करते हैं। बट यू सेड कि देयर आर मंथ की कुछ इनकम नहीं होती थी, तो हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑन दोज मंथ जब बिल्कुल इनकम नहीं हो रही है? अभी भी अगर ऐसा फेज आ रहा है, तो आप कैसे मोटिवेट रखते हो कि अरे यार ठीक है, मतलब कैसे आप आगे जाते हो उसके साथ? देखो, इनकम नहीं आ रही है सो दैट मीन्स ये तो नहीं है ना कि आपके आगे इनकम नहीं आएगी। हम्म। आज नहीं आ रही है कल तो आएगी, या कल ट्रू। नहीं आ रही है परसों तो आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि जीरो के आप ऊपर ही रहोगे। आप ट्रू। मेहनत कर रहे हो, आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, तो इनकम क्यों नहीं आएगी? ट्रू। ट्रू। है ना, वो तो आनी ही आनी है। और देखो, पैसे का वो चीज है ही नहीं, पैसे तो अगर आपके अंदर थोड़ा भी वो होगा ना, अगर आप हाँ। थोड़े भी इंटेलिजेंट होंगे तो पैसे तो आप कहीं से भी कमा लोगे, बाय ट्रू। जॉब बाय कुछ भी करके पैसे आप कमा लोगे। बट आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, वो मेजोरिटी आपको देखना है। कौन सा काम ऐसा है जो आप अपना इंटर लाइफ कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, वैसा काम आपको चूज करना चाहिए। लाइक ये काम ऐसा है कि मुझे अगर मुझे पूरी लाइफ करना पड़े तो भी मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर कोई काम आपका ऐसा होगा कि भाई आपको 2 लाख मैं सैलरी दे दूं, बट आपका वो काम आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली बात है वो नहीं कर पाओगे ना, एक लिमिट तक आप करोगे, उसके बाद वो काम आप छोड़ दोगे। ट्रू। है ना, वो यस। चीज है। मान लो सपोज आप वेजिटेरियन हो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से बताऊं, तो सपोज आप वेजिटेरियन हो एंड मैं आपको एक नॉन वेजिटेरियन प्लेस है वहां पर कुछ वेजिटेरियन मिलता ही नहीं है। ओके, वहां पर आपको छोड़ दूं और आपको बोलूं कि भाई आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज होगी, तो आप नहीं करोगे। नहीं नहीं। वो ट्रू। चीज है। यस। थैंक तो यू सो पैसे तो मच। बन जाएंगे आपके, पैसे का दिक्कत नहीं है, बट आपको जो करना है वो आपको देखना है कि भाई मुझे करना क्या चीज है ना, कौन सी चीज आप 100% कर पाओगे अपनी लाइफ में और उससे आप बोर नहीं होंगे।
ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि भाई 1 घंटे करके बोर्डनेस लगती है या फिर थकान लगती है कि भाई 2 घंटे कर लिया, आज तो बहुत काम कर लिया ऐसा लगता है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते, है ना? Yeah, this is very true because we are in social media and we see things and अब हमारा concentration इतना छोटा हो गया है कि when we see कि okay ये grow नहीं हो रहा है हम switch कर लेते हैं, we switch very fast to different things. So yeah, that is true. We फिर have कुछ to भी नहीं कर पाते ना आप। मान लो कि 2 साल बिजनेस करते हो, फिर स्विच कर लेते हो, फिर वो करते हो, उससे अच्छा आप 2 साल जॉब कर लेते तो वहां तो एटलीस्ट ग्रो करते। stable income होती. True. मान लो आपकी सैलरी अभी 30,000 हो, एंड अगर आप 2 साल वहां पर कंटिन्यूसली जॉब करोगे तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, एंड 30 का 40 भी होगा। Yeah, true. अगर काम अच्छा रहा तो 60 भी होगा। Hmm. Exactly. वो चीज है, तो इधर उधर भटकने से अच्छा कोई एक चीज करो ना। ठीक है। Yeah. आज के यंग जनरेशन में देखता हूँ कोई कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर, कुछ नहीं कर रहे हैं। होगा ही नहीं ना Yeah. कुछ। आप मान लो कि अभी अभी मान लो मैं फाउंडर हूँ, अभी मैं जॉब करने जाऊंगा तो मेरा तो वहां पर जीरो से करियर स्टार्ट होगा ना। Yeah. ठीक है। उससे अच्छा मैं कोई पहले से ही जॉब कर रहा होता तो मुझे वहां पर अच्छी सैलरी मिलती, Hmm. ग्रोथ True. होता। तो जो भी True. करो वो डिसीजन अपना सोच समझ के लो, और जो डिसीजन लो वो आपको आपके खुद के डिसीजन में वैसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये क्या कर लिया मैंने। मैं अगर मैं ही डिसीजन ले रहा हूँ तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। Hmm. ठीक है, वो तो डिसीजन आपका ही था, किसी और का तो था नहीं, Yeah. True. है ना। वो चीज है। Okay. Okay, thank you so much. This is really very insightful and very thoughtful. And I think me and Srinivas and everybody whosoever gonna listen this, we have so many knowledge and also the motivation to work and start something new. That's it. Thank you so much, everybody, to tuning with us. And a special thanks to me, sir, for being here and अपने life के इतने सारे experience share करने के लिए. Thank you so much. या थैंक यू एवरीवन।